Hello students, good morning to all of you. In our last lecture, we discussed the different ionic crystal structure like roxyl type structure, cesium chloride type structure, fluoride type structure and anti-fluoride structure. In this lecture, we will discuss about the imperfections or defect in solid state. This is very important topic for your paper point of view. What is imperfection either defect, both are same thing. You know that कि imperfection का मतलब जो perfect नहीं है. So any departure from perfectly arrangement of constituent particle in crystal is called the imperfection or defect. आपको पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन द रेगुलर पैटर्न. When there is any deviation, any change from that particular regular arrangement, either there is a irregular arrangement, this type of deviation or departure is known as the imperfections or defects in the crystalline solid. What is the causes of defect? क्या कारण है? First of all, due to the absorption of heat by crystal from surrounding. If your crystalline solid absorb heat from surrounding, then it shows some defect, and due to the presence of impurity in the crystal. And second thing is, when the some impurity is present in the crystal, it also create a defect in the ionic crystal. Types of defect. There are two types of defect. One is the point defect and another is the line defect. What is point defect? When the deviation exists around a point or around an atom in a crystalline substance is known as the point defect. जब भी कोई जो डेविएशन होती है, कोई जो चेंज होता है, वो सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है या कोई एटम है, इसी के अराउंड अगर कोई भी तरह की आपकी डेविएशंस आती है तो उसको आप क्या बोलते हो? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हो. लेकिन अगर वो डेविएशन एंटायर रो में आ जाती है लैटिस पॉइंट की, आपको पता है ना लैटिस पॉइंट क्या है? द पॉइंट in a crystal where constituent particles are present is known as the lattice point. कि आपका जो कोई भी crystalline solids होता है, उस crystalline solids के अंदर जहाँ जहाँ पे constituent particles present होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? lattice point. And you know about the constituent particles क्या होते हैं? आपके atoms, ions and molecules are your constituent particle. तो जब आपका entire row में कोई भी deviation शो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? line defect बोलते हैं. ये जो इम्परफेक्शंस हैं, ये डिफेक्ट्स हैं, ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें इनका इतना लॉस नहीं है. इम्परफेक्शंस नॉट ओनली मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज़ बट ऑल्सो समटाइम इम्पार्ट न्यू प्रॉपर्टी टू द क्रिस्टल. इम्परफेक्शन की वजह से जो आपका क्रिस्टल होता है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस भी होती हैं, और जो क्रिस्टल्स होता है उसमें कुछ आपके नए कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं. सो in our syllabus there is the point defect, so we will discuss about the point defect in detail. Okay, point defect को हम डिटेल में करेंगे. लाइन डिफेक्ट के बारे में हम कोई भी बात यहाँ पे नहीं करेंगे, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो. सो पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली आर ऑफ थ्री टाइप्स: स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट: स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, non-stoichiometric defect and impurity defect. Let us discuss one by one. What do you mean by the stoichiometry? Stoichiometry related to the some numerical calculations or their ratio. Okay, so first of all, stoichiometric defect, the defect in which after the defect the ratio of cation and anions remains the same and represented in the molecular formula of crystal is known as the stoichiometry defect. मीन्स कि स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट वो होता है कि जब भी किसी सॉलिड में किसी तरीके का कोई डिफेक्ट हो और उस डिफेक्ट के बाद जो उसमें नंबर ऑफ कटायंस हैं या अनायंस हैं या कोई जो दूसरे दो एटम्स का जो रेशियो है वो डिफेक्ट के बाद सेम रहता है. सेम होने का मतलब क्या है? कि वही रहता है जो आपका उस एलिमेंट के या उस जो आपका उस कंपाउंड के या उस क्रिस्टल के जो है वो जो है कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब जो उसकी स्टोक्योमेट्री है, जो उसका रेशियो है, उनमें जो एटम्स का रेशियो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है.
तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फॉर सपोज करो कि मेरे पास किसी भी क्रिस्टल में जो है वो 10 कटायन है और 10 ही अनायन है, तो इनका जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो 1:1। तो अगर इसमें किसी भी टाइप का कोई भी डिफेक्ट आएगा, उस डिफेक्ट के बाद भी उन एटम्स का जो उस कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें जो एटम्स का रेशियो है वो हमेशा 1:1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट इज नोन एज द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक डिफेक्ट एंड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वाई स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज नोन एज द इंट्रिंसिक डिफेक्ट और वाई इट इज़ नोन एज द थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। तो यू हैव टू नो व्हाट यू मीन बाय द इंट्रिंसिक। इन का मतलब इनसाइड, मतलब कि जब किसी भी क्रिस्टल में एक ऐसा डिफेक्ट क्रिएट होता है जिस डिफेक्ट में उसमें आउटसाइड से कोई भी मटेरियल नहीं ऐड होता, मतलब जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो सब इंटरनल साइड से हो रहा है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल वहाँ पे नहीं आ रहा है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल की इंट्रेंस वहाँ पे नहीं है या इंटरफेयर नहीं है, दैट पर्टिकुलर टाइप इज नोन एज द इंट्रिंसिक डिफेक्ट। एंड थर्मोडायनेमिक, आपने थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, मोशन, यानी कि अभी आपने कहा था कि जो क्रिस्टल होता है उसमें जो डिफेक्ट होता है उसका एक रीज़न ये भी है कि वो अपनी साइड से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है। तो जब वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, हो सकता है कि कुछ जो आयंस हों वो क्रिस्टल को छोड़ के ही चले जाएं या कुछ भी ऐसा हो, क्योंकि हीट की एब्जॉर्प्शन की वजह से हो रहा है। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज द थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। नाउ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट फाइनली जो है आप 2 टाइप्स की बात करते हैं। वन इज़ द वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी का मतलब क्या होता है, खाली जगह, एम्प्टी। तो अगर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसी भी लैटिस साइट से, आपको मैंने लैटिस साइट बार बार बता रही हूँ, व्हाट इज़ द लैटिस साइट, द पोजीशन इन द क्रिस्टल वेयर द कांस्टेंट पार्टिकल्स इज प्रेजेंट, दैट ईच पोजीशन इज नोन एज द लैटिस साइट। तो अगर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर किसी भी डिफेक्ट की वजह से जो लैटिस पॉइंट होता है वो खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट इज नोन एज द वैकेंसी डिफेक्ट। और ये कब होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट से, कि सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया और हीट को एब्जॉर्ब करके जो आपका एटम है या जो आपका एलिमेंट है उसकी जो एनर्जी होगी वो हायर होगी, एक्साइट हो गया और वो आपके क्रिस्टल को लीव कर गया, तो वहाँ पे उसकी जगह पे जो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट इज नोन एज द वैकेंसी डिफेक्ट। इसको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको शो कर रखा है कि पहले इन सारों में शेडेड पोर्शन का मतलब कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है, होलोस्फीयर का मतलब यहाँ पे जो है एटम जा चुका है, तो इसको आप थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हो। इससे क्या होता है कि जो आपका क्रिस्टल है उसकी जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। अब ये कैसे, आपको पता है किसी भी चीज़ की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम तो सेम था लेकिन मास क्या कर गया, डिक्रीज़ कर गया, क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो बाहर चले गए, तो मास क्या कर गया, डिक्रीज़ कर गया, और जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो अगर मास जो है डिक्रीज़ कर गया, दैट मीन्स कि जो डेंसिटी है वो भी क्या कर गई, डिक्रीज़ कर गई। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंटरस्टिशियल साइट होती क्या है, ये साइट की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर जो पार्टिकल्स आपस में अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस, ये चीज़ें हैं, ये जो एम्प्टी स्पेस होता है, दैट पर्टिकुलर स्पेस इज़ नोन एज द इंटरस्टिशियल साइट। ये जो इनके बीच में जो है खाली स्पेस होता है, इसी खाली स्पेस को आप क्या कहते हो, इंटरस्टिशियल साइट। यानी कि ड्यूरिंग डिफेक्ट अगर इस इंटरस्टिशियल साइट में कोई भी इंटरफेरेंस हो रही है तो वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। सो व्हेन सम एक्स्ट्रा कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट, अगर जो इंटरस्टिशियल साइट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जैसे आपने देखा है कि यहाँ पे ये इंटरस्टिशियल साइट है और यहाँ पे ये सिर्फ एक पार्टिकल ये और एक ये पार्टिकल ये इंटरस्टिशियल साइट में आ गया है, तो यहाँ पे इसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीजेस। अब डेंसिटी का वही आप लॉजिक लगाओ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, एंड आप ये देख रहे हो कि वॉल्यूम तो सेम है लेकिन इसका मास इंक्रीज कर रहा है। मास क्यों, पिछले वाले में 2 निकल के चले गए थे और यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल साइट पे आ गए हैं, तो जो ये वाले आए हैं इससे क्या हुआ, क्रिस्टल का जो है मास वो इंक्रीज़ कर गया है। दैट मीन्स क्या हुआ है, जो क्रिस्टल की डेंसिटी है वो भी क्या कर गई है, इंक्रीज़ कर गई है। अब जो आपने 2 टाइप्स के डिफेक्ट करे हैं, चाहे वो आपका वैकेंसी डिफेक्ट हो या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो, ये जो दोनों डिफेक्ट होते हैं वो नॉन आयनिक सॉलिड्स वाले शो करते हैं, आयनिक सॉलिड शो नहीं करते हैं। आयनिक सॉलिड जो शो करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो मेनली होते हैं शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट।
So what is the Schottky defect? When during the defect equal number of cation and anion from its lattice side so that the electrical neutrality of the crystal maintain, this particular type of defect is known as the Schottky defect. कि मीन्स अगर आपका कोई आयनिक सॉलिड है जो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयन से बना हुआ है, वन इज़ द कटायन ए पॉजिटिव एंड अनायन इज़ बी नेगेटिव, एंड डिफेक्ट में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन जो है मिसिंग हो रहे हैं लैटिस साइड से, लेकिन अगर इक्वल नंबर कटायन और अनायन जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है वो क्रिस्टल की क्या होती है, मेंटेन होती है. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ नोन एज द Schottky डिफेक्ट. ये देखो यहाँ पे मैंने क्रिस्टल ड्रॉ किया हुआ है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव अल्टरनेट पे रख के मैंने ये पूरा क्रिस्टल आपका बनाया हुआ है. ओके, आप इसको देख सकते हो. अब यहाँ से ए पॉजिटिव आना था तो ए पॉजिटिव मिसिंग हो गया. इस तरह से ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आना था तो एक कटायन गया और एक अनायन गया. तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है ना, कि जितने कटायन हैं उतने ही अनायन क्रिस्टल में यहाँ पे प्रेजेंट है. तो ये स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट हुआ, क्योंकि आफ्टर द डिफेक्ट जो यहाँ पे आपका रेशियो है कटायन और अनायंस का वो तो क्या है यहाँ पे सेम है, इसलिए ये एक टाइप का क्या हुआ, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट ही हुआ. आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें कि एक कटायन मिसिंग है तो एक अनायन, जरूरी नहीं एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. तो ये एक स्मॉल सा पोर्शन आपको शो कर रहे हैं. अब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई तो इट इज़ ए वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी टाइप का डिफेक्ट भी है. अब ये डिफेक्ट किन कंपाउंड्स शो करते हैं, ऐसे कौन कौन से आयनिक कंपाउंड्स हैं जो इस टाइप के डिफेक्ट को शो करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर शो दिस डिफेक्ट. व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द नियरेस्ट नेबरिंग, और जैसे आप कह सकते हो कि गिवन स्फीयर को कितने स्फीयर डायरेक्टली टच कर रहे हैं, डायरेक्ट उसके कॉन्टैक्ट में, दैट इज दैट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. सपोज करो कि अगर ये एटम ए है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करें तो इसको 4 स्फीयर टच कर रहे हैं, तो ये जो है इस टाइप का जो है डिफेक्ट शो करेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कल किया था जो उसमें सोडियम क्लोराइड का 6 कर रहे थे, सीजियम क्लोराइड का 8 कर रहे थे, तो वो वाले इसको शो करते हैं. और दूसरी थिंग है स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कटायन एंड अनायन. तो इस डिफेक्ट के लिए जो कटायन और अनायन है उनकी साइज में स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए. फॉर एग्जांपल NaCl, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, KCl, KBr, AgBr, सीजियम क्लोराइड, तो ये इसके हैं. इस डिफेक्ट की वजह से द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस. वाई डेंसिटी ऑफ द? बिकॉज इफ कटायन एंड अनायन मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड द वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल्स रिमेन द सेम बट मास ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस. That's why density of the crystal also decreases. So due to Schottky defect density of the crystal decreases. Okay, आपने सभी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं. बाद में मैं इसको कंपैरिजन के लिए बोलूँगी नेक्स्ट डिफेक्ट से, तो सो डैट आप इन्हीं पॉइंट्स को लेके जो है कंपैरिजन कर सकते हो. जो बुक में पॉइंट्स दिए हुए हैं आप उससे ज़्यादा पॉइंट्स बना सकते हैं. एंड ये पेपर में 2 या 3 मार्क्स में आता है डिफरेंस के लिए, और सिंपल भी आ सकता है. ओके, नाउ योर नेक्स्ट डिफेक्ट इज द फ्रैंकल डिफेक्ट. शॉटकी डिफेक्ट के नेक्स्ट जो है आयनिक जो सॉलिड सेकेंड टाइप का डिफेक्ट शो करते हैं, दैट इज द फ्रैंकल डिफेक्ट. व्हाट इज द फ्रैंकल डिफेक्ट? इन फ्रैंकल डिफेक्ट द constituent particles missing from its lattice side and occupy the interstitial position in the same crystal. ओके, इसमें जो आयंस होते हैं वो अपनी लैटिस साइड से मिसिंग होते हैं और ऑक्यूपाई करते हैं सेम क्रिस्टल के अंदर इंटरस्टिशियल साइड के. तो यहाँ पे कम्बिनेशन है, क्योंकि अगर मैं इसका डायग्राम आपको शो करूँ यहाँ पे 1 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आगे का डिस्कस करती हूँ. आप इसका डायग्राम देखो. इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये आयनिक क्रिस्टल है और यहाँ पे आपका ए पॉजिटिव आना था. ए पॉजिटिव यहाँ से मिसिंग हुआ और यहाँ पे पोजीशन लिया, तो एक तो हुआ कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी आया और दूसरा क्या हुआ, वैकेंसी भी क्रिएट हुई. मीन्स जो आपका ये फ्रैंकल डिफेक्ट है ये कम्बिनेशन है. किसका कम्बिनेशन है? ये शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में. जैसे शॉटकी में तो सिर्फ वैकेंसी क्रिएट होती थी, तो यहाँ पे आपका वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का क्या है, कम्बिनेशन है. ये डिफेक्ट वो आयनिक कंपाउंड शो करते हैं जिनमें कटायन और अनायन में जो होता है वो जो है डिफरेंस जो है साइज़ का जो है वो ज़्यादा होता है. एक्चुअल में देखो क्या है, इंटरस्टिशियल साइड पे कटायन जाएगा या अनायन जाएगा. इसके लिए आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है. आपको ध्यान होगा, आपको मैंने 11th क्लास में करवा रखा है 3rd यूनिट में कि वाई कटायंस आर स्मॉलर साइज दैन इट्स पेरेंट्स एटम एंड अनायंस हैज़ लार्जर साइज एट इट्स पेरेंट एटम.
सो मीन्स जो कटायन होते हैं, कटायन का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, वो खुद को इंटरस्टिशियल पोजीशन पे ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अनायन का साइज़ लार्ज होता है, दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड, यू कैन से दे आर नॉट फिट इन द इंटरस्टिशियल साइड। सो कटायंस का साइज छोटा होता है, इसलिए कटायन ही इंटरस्टिशियल साइड को क्या करेंगे, आपके जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। दिस डिफेक्ट इज नोन एज द डिसलोकेशन डिफेक्ट। लोकेशन का मतलब जहाँ उसकी पोजीशन है, डिसलोकेशन का मतलब अपनी पोजीशन से जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो हट गया है। सो दैट दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज द जो डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट किन किन में होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका होता है लास्ट डिफरेंस होता है कटायन और अनायन की साइज़ के बीच में, मतलब नियरली सेम साइज़ का नहीं होता, क्योंकि अगर कटायन का साइज़ छोटा होगा और अनायन का साइज़ बड़ा होगा तभी कटायन उसकी इंटरस्टिशियल साइड पे क्या होगा, वो फिट होगा। इनके एग्जांपल हैं AgCl, AgBr, AgI एंड ZnS। इस डिफेक्ट में जो होता है डेंसिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे इसकी लास्ट डिफरेंस, आप कह सकते हो कि डेंसिटी रिमेन्स सेम। आप इसमें एक डिफरेंस आएगा, ये एक पॉइंट ये भी रह गया लिखने को, दैट्स द डेंसिटी रिमेन्स सेम। जो क्रिस्टल है उसकी जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है। अभी डेंसिटी सेम क्यों है, उसका रीज़न क्या है, देखो वॉल्यूम उतना ही था, वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एंड जो एटम जो है आपका इंटरस्टिशियल पोजीशन से मिसिंग है वो उसी के अंदर जो है लैटिस पॉइंट से मिसिंग होकर इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बाहर तो नहीं गया, यानी कि मास भी उतना ही है, इसलिए डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर नॉट फाउंड इन द एल्कली मेटल हैलाइड। आपके जो ये डिफेक्ट होते हैं वो एल्कली मेटल हैलाइड्स में नहीं मिलते हैं। उनका रीज़न क्या है बेटा, एल्कली मेटल हैलाइड्स की अगर बात करोगे तो वो सोडियम पॉजिटिव एंड पोटेशियम पॉजिटिव, ये एल्कली मेटल्स है, ग्रुप 1 वाले मेटल्स एल्कली मेटल्स। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिस्पेक्टिव पीरियड्स में साइज़ में सबसे बड़े होते हैं, ओके। और अगर कटायन का साइज़ बड़ा है तो वो जो है यहाँ पे इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। यहाँ पे जेडनेस इसलिए शो करता है क्योंकि यहाँ पे जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन होता है उसका साइज़ छोटा होता है और वो इंटरस्टिशियल जो साइट होती है उसमें खुद को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये यहाँ पे है। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिल्वर क्लोराइड एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि क्वेश्चन बनता है विच टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी गिव द एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड विच शो बोथ शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, एंड दिस इज द सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड शो बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ओके। अब मेरा यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन है, ये मैंने स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट सारा ख़त्म कर दिया, जो नॉन स्टोक्योमेट्रिक और जो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में हमने स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात करी थी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज़ नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट। ये जो आपका स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है उसको आप इंट्रिंसिक डिफेक्ट क्यों कहते हो, नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट। देखो बेटा क्या है, आप इंट्रिंसिक डिफेक्ट का मतलब इनसाइड, अब आपने चाहे वैकेंसी डिफेक्ट किया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किया, आइदर शॉटकी किया, फ्रेंकल किया, आपने क्या देखा उसमें फॉरेन पार्टिकल कुछ आया, मतलब आपने उसके अंदर कुछ बाहर से ऐड किया, नहीं किया, जो भी था इसी में अरेंज हुआ, बाहर से कुछ नहीं आया, किसी फॉरेन पार्टिकल की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, दैट्स वाई दिस डिफेक्ट इज़ नोन एज द इंट्रिंसिक डिफेक्ट। उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने जो है करने हैं और उसको मुझे देना है। माई क्वेश्चन इज़ वाई स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज़ कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। मैंने इसको स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल में जो कोई भी डिफेक्ट होता है तो वो तब होता है जब क्रिस्टल सराउंडिंग से जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल होता है उसकी एनर्जी इंक्रीज़ करती है और क्रिस्टल को लीव करता है। तो उस बिहाफ पे आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। विच डिफेक्ट इज़ कॉल्ड द डिसलोकेशन डिफेक्ट एंड वाई, मैंने आपको समझाया हुआ, आप इसके आंसर करो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, नंबर ऑफ डिफरेंस के पॉइंट हैं, आप इसको यहाँ पे कर सकते हो, ओके। वाई दिस 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट नॉट शोन बाय द एल्कली मेटल हैलाइड, ये भी क्वेश्चन है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि विच कंपाउंड शो बोथ शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो आप जो है होप सो आपको जो है समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी पर्सनली और यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन कमेंट सेक्शन।
वेन एवर आई सी यू मैसेज आई रिप्लाई टू यू। एंड स्टूडेंट्स, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आप सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन पाएँ और सबसे पहले इसको देखें। थैंक यू सो मच।